Hello students, my name is Atulay Kumar, Assistant Professor BBD ITM Lucknow. In this lecture series we are studying about transportation engineering. Till now we have discussed about different types of highway cross sectional element design such as side distance, overtaking side distance, vertical curves, extra widening, what is super elevation, etc. In today's lecture, we are further continuing our discussion where we will going to study about setback distance. So, contents for today's lectures are setback distance and introduction to vertical alignment. Okay. So, let us start. So, basically whenever we are constructing a road or we are designing a road, there will be some circumstances, some situation arises while constructing or while designing our alignment such that our alignment, the path of our alignment will fall in some way between some important structure, some religious structure, some historical monument, etc. At that particular point of time, either we have to change our alignment or we have to complete or we have to change some modification in our design. So, what is setback distance? The setback distance arise from same situation, from same situation in which in our alignment there are some important structure, so for national importance or for monument, etc. Especially from the Indian such vast civilization background, we have various important structure, important monument that fall between our alignment. So, in such cases either we have to change the alignment or we have to create some modification in our design. So, setback distance is basically a distance that is measured from inner lane of a road to an obstruction. So, from the pictorial point of view, suppose we are traversing a road like this is our road and there is some important structure created over here, okay. Some important structure XYZ is created over here, and after when we are travel this road, so suppose this road is, suppose this road is 2-lane and 2-way road, 2-lane and 2-way road, single lane and 2-way road. So, basically one vehicle A is traveling in this direction and one vehicle B is travel in this direction, okay. So, अगर जिस point of view पे, जिस point पे सपोज करते कि ये व्हीकल भी यहाँ पे रहेगा और ये स्ट्रक्चर कुछ रोड के नज़दीक में है, ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ रोड के नज़दीक में है, ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ रोड के नज़दीक में है। जब ये रोड के नज़दीक में है, ये स्ट्रक्चर कुछ रोड के नज़दीक में है, तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे व्हीकल ए को ना व्हीकल बी दिख रहा होगा, ना व्हीकल बी दिख रहा होगा और ना व्हीकल बी के ड्राइवर को व्हीकल ए दिख रहा होगा और दोनों अपने डिज़ाइन स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। जब वो जब वो मूव करते करते इतने नज़दीक आ जाएंगे कि उस टाइम में ब्रेक लगा के कोलिजन अवॉइड करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाएगी। तो उस टाइम में क्या होगा, तो एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। तो इस रीज़न क्या था एक्सीडेंट होने का? ऐसा तो दोनों ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, दोनों अपने अपने लेन में चल रहे थे, डिज़ाइन ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे थे, जो डिज़ाइन स्पीड थी रोड की उसी डिज़ाइन स्पीड पे ये लोग ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट होने की चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई। तो उसका जो रीज़न था वो था ये ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय पहले ही ये व्हीकल ए को व्हीकल बी नहीं दिखा और वाइस वर्सा व्हीकल बी को व्हीकल ए नहीं दिखा। तो उस टाइम में क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो दोनों के लाइन ऑफ साइट को के साथ मैच कर रही थी। उसके कारण से क्या हुआ कि हमारा जो व्हीकल ए या व्हीकल बी है उनके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिला जिससे कि वो कोलिजन को अवॉइड कर सके। तो सेटबैक डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन अ इनर साइड ऑफ कर्व। setback distance is required to provide adequate side distance on a horizontal curve। अभी हम लोग horizontal curve की बात कर रहे हैं, तो horizontal curve पे setback distance का मतलब हुआ कि obstruction के inner lane of the road के बीच की जो distance होती है उस distance को हम लोग बोलते हैं setback distance। setback distance provide करने का क्या रीज़न है? तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि setback distance जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे जो मेन रीज़न है फॉर द एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब एक जब सामने वाला व्हीकल दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल को देख के रुक जाए, उस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर बीच में था जिसके कारण से हमने व्हीकल ए, अगर व्हीकल ए के ड्राइवर ने व्हीकल बी को नहीं देखा और व्हीकल बी के ड्राइवर ने व्हीकल ए को नहीं देखा, और इसके कारण से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की जो साइड डिस्टेंस थी, जो डिस्टेंस चाहिए थी ब्रेक लगाने के लिए, जो डिस्टेंस चाहिए थी ब्रेक लगाने, क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइड डिस्टेंस में दो पार्ट होता है, एक तो होता है लैग डिस्टेंस, दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस में ह्यूमन की जो पीआईवी थियरी के हिसाब से जो टाइम लगता है, यानी कि 2.5 सेकंड हम लोग एज्यूम करते हैं, जो वो 2.5 सेकंड ह्यूमन लेता है एनालाइज करने में सिचुएशन को, उस सिचुएशन के बाद का जो टाइम होता है, उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग लैग डिस्टेंस बोलते हैं।
ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है कि जिस मोमेंट पे उसने ब्रेक अप्लाई किया और जिस मोमेंट पे गाड़ी जो है वो कंप्लीटली स्टॉप, जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उस बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो SSD होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो अगर जब इस व्हीकल को दिखेगा तब तो ये सिचुएशन एनालाइज करेगा ना, एनालिसिस करने के लिए आपके पास में सिचुएशन होना चाहिए, तभी आप एनालिसिस करेंगे। तो ड्राइवर ए, व्हीकल ए के ड्राइवर ने व्हीकल बी को देखा ही नहीं, तो उसके पास में एनालिसिस करने की जो चांसेस थी, जो टाइम था वो है नहीं। वो जब नजदीक आ गया, कुछ नजदीक आ गया, तब जाकर उसने व्हीकल बी को देखा। उस टाइम में जो टाइम लगाया, तो टाइम तो उतना ही लगने वाला, 2 to 2.5 सेकंड के बीच में, और स्पीड उतनी ही थी, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी उतनी होगी। तो अगर हम सपोज करते हैं कि इसकी ओरिजिनल में एसएसडी जो थी, ओरिजिनल में व्हीकल ए की जो एसएसडी होनी चाहिए थी वो 100 मीटर होनी चाहिए थी कोलिजन से बचने के लिए, कैलकुलेट करने से। लेकिन सपोज करते हैं कि वो 100 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो साइड डिस्टेंस अब उसे कैलकुलेट करने को मिल रहा है वो अराउंड कितना मिल रहा है, वो अवेलेबल कितना है, वो 80 मीटर आ रहा है। ओरिजिनल उसे चाहिए कितना, जिस स्पीड से वो चल रहा है उस स्पीड के हिसाब से उसे 100 मीटर चाहिए था। लेकिन अब क्या है, अब जिस स्पीड से है और जो अवेलेबल डिस्टेंस है दोनों व्हीकल के बीच की, यानी कि अगर व्हीकल ए मूव करते करते यहाँ पहुंच जाए, व्हीकल ए यहाँ पहुंच जाए, तब जो ये डिस्टेंस बचा हुआ, अब इतना ही डिस्टेंस एसएसडी साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, इसी में इस गाड़ी को ब्रेक लगा कर रोकनी है। तो ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 मीटर उसको मिनिमम चाहिए था, 80 मीटर उसके पास में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, कोलिजन तो 100 होना, 100% यानी कि एक्सीडेंट होने की चांसेस अब 100% हो गई है। तो इसीलिए सेटबैक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम अपने रोड के इनर लेन से ऑब्स्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम कंस्ट्रक्ट कराए, सो डैट कि हमारा जो गाड़ी है, जब हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कोलिजन यानी उसके एक्सीडेंट होने की चांसेस जो होती है वो कम होती है। बेसिकली सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का दो तरीका है। एक तो या तो आप सेंटर लाइन ऑफ रोड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इनर लाइन ऑफ रोड से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास में मल्टी लेन रोड है तो आप कोशिश करेंगे कि आप सेंटर लाइन ऑफ रोड से कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में सिंगल लेन रोड है और 2 वे व्हीकल आ रहा है, तो आप उस टाइम में कोशिश क्या करेंगे, उस टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इनर लेन ऑफ व्हीकल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेटबैक डिस्टेंस। उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस जो डिपेंड करता है, सेटबैक डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड लेंथ ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, लेंथ ऑफ, ये तीनों पैरामीटर बारी बारी से हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था। सपोज करिए ये मेरा ऑब्स्ट्रक्शन था, ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन था, ओके, ये ऑब्स्ट्रक्शन था, और ए एंड बी जो है ये लोकेशन ऑफ व्हीकल दिखा रहा है कि यहाँ पे एक व्हीकल है, एक व्हीकल यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, और एक व्हीकल बी है जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सपोज करिए ये ऑब्स्ट्रक्शन में हमें कोई मॉल बना हुआ है, ओके, हम किसी मॉल की बात कर रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मॉल बना हुआ है। अब क्या है कि जब ये व्हीकल ए व्हीकल बी मूव कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो व्हीकल ए को व्हीकल बी नहीं दिख रहा है, अभी व्हीकल बी को व्हीकल ए नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हम लोग डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ रही है। तो क्यों ना हम इस डिस्टेंस को, ये जो मॉल है हमारा, ये शॉपिंग मॉल का जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उसको हम अपने रोड से किसी दूरी पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम लोग कंस्ट्रक्ट कराए, सो दैट कि हमारे व्हीकल के बीच में, यानी कि हमारे रोड पे एक्सीडेंट होने की चांसेस कम हो जाए। और वो जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। यानी कि हमारा रोड क्या था, रोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रोड से एम डिस्टेंस, ये जो एम डिस्टेंस है, ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेटबैक, एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेटबैक को, ओके, एम इज रिप्रेजेंटिंग सेटबैक डिस्टेंस, ओके। तो सेटबैक डिस्टेंस का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन अपने रोड के साइड में कराना है, रोड के साइड में, तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस हमें रोड्स के इनर लेन से अपने कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में रखना पड़ेगा, सो डैट कि रोड पे एक्सीडेंट की जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए। उसका तो एनालिसिस अगर हम सेटबैक डिस्टेंस करते हैं, तो सेटबैक डिस्टेंस के एनालिसिस में हम लोग के पास में 2 कंडीशन अराइज होती है। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि या तो लेंथ ऑफ कर्व जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, या लेंथ ऑफ कर्व जो है वो साइड डिस्टेंस से कम है। 2 केस है, एक या तो लेंथ ऑफ कर्व हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर हमारा लेंथ ऑफ कर्व स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है। ये 2 प्राइमरी केस है। अगर इन दोनों में अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए, तो अगर लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है, अगर सपोज करिए ये कंडीशन हमारे पास में कि इफ लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो इसमें भी हमारे पास 2 केस आता है। पहला केस आता है फॉर 1 लेन रोड, सिंगल लेन रोड के लिए बात आती है, और ये बात आती है फॉर 2 मल्टी लेन या डबल लेन रोड के लिए, ये 2 केस आता है।
हम लोग इन सभी केसेस के बारी बारी से एनालाइज करेंगे कि हर केस के हिसाब से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी और क्यों कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस हम लोग लेते हैं, फॉर द कंडीशन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि हम ये डायग्राम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व है, ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व है। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व की बात करा जाए तो आपके पास में लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ये कंप्लीटली है, ये पूरा आपका लेंथ ऑफ कर्व है, ये पूरा एलसी जो है ये लेंथ ऑफ कर्व है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो बात होती है कि दो गाड़ी के बीच की डिस्टेंस, फ्रॉम टू व्हीकल, दो व्हीकल के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे। तो हो सकता है कि अगर हमारा गाड़ी व्हीकल ए जो है वो कहीं यहाँ पे है और व्हीकल बी जो है वो सपोज करते हैं हम यहाँ पे है, यहाँ पे व्हीकल बी है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो ये केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारा लेंथ ऑफ कर्व यानी कि एलसी, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा लेंथ ऑफ कर्व जो क्या है वो एसएसडी से ज्यादा बड़ा है। तो उस केस में अगर हम उस केस की बात करें तो उस केस में आपको एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड है, ये हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड है, ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हम लेते हैं ओरिजिन, यहाँ से हम एनालिसिस, ये हमारा एनालिसिस करने का पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इस सेंटर से बात करें, इस सेंटर से बात करें तो रोड का ये सेंटर लाइन है, रोड की ये क्या है, ये रोड की सेंटर लाइन है, ये रोड की सेंटर लाइन है, ये रोड की सेंटर लाइन है। ओके, तो अगर हम ओरिजिन से सेंटर लाइन की तक की बात करें, यहां तक की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा रेडियस ऑफ कर्व। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, ये सेंटर किसका, ये कर्व का, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व हमने अपने रोड पे बनाया, हॉरिजॉन्टल कर्व की का डिस्कशन हम लोग पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या जरूरत होती है हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करने की, जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व है और इस हॉरिजॉन्टल कर्व का सेंटर ओ है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व की जो सेंटर है वो है, और इसकी जो रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, और हमारे पास केस क्या कौन सा है, हमारे पास केस है कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसमें अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल फॉर दिस इंस्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं फॉर सिंगल लेन रोड, हम लोग सिंगल लेन रोड की बात कर रहे हैं। तो आर क्या है, हमारा रेडियस है, आर हमारा क्या है, रेडियस है। और एम क्या है, एम हमेशा से रिप्रेजेंट करेगा, वो एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेटबैक डिस्टेंस को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेटबैक डिस्टेंस को। तो सेटबैक डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, सेटबैक डिस्टेंस होता है हम लोग सेंटर लाइन ऑफ रोड से इस ऑब्स्ट्रक्शन तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पाथ ऑफ अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है और रोड के सेंटर लाइन तक के बीच की जो डिस्टेंस है हम लोग उसकी बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेटबैक डिस्टेंस। तो हम इसके एनालिसिस करते हैं, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, अगर नाम दे ओ ए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और हम यहाँ पे यहाँ हम बात करते हैं ओ ए सी की बात करें, अगर हम ट्रायंगल ओ ए सी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ट्रायंगल ओ ए सी की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल ओ ए सी में आप देखोगे तो आपके पास में ये डिस्टेंस है। तो आपसे अगर ये कोई डिस्टेंस पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे और ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 बन रहा होगा, टोटल एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा बाई 2 बन रहा होगा। तो अगर हम इस केस में बात करें, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस की बात करनी है। तो अगर हम इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे आर कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओसी के बराबर में, ओसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा बाई 2, ओसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा बाई 2, है ना। ओसी डिस्टेंस ये देखिए टोटल, अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 लिखना चाहें, कॉस अल्फा बाई 2 अगर आप लिखना चाहें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के हिसाब से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओसी अपॉन आर, और ओसी अपॉन आर यानी कि ओसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओसी इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 2। और हमारे पास एम इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू क्या है, अगर हम यहाँ पॉइंट ए बी दें तो एम इक्वल टू हम देखेंगे, तो एम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एम इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं साफ कर दूँ जरा सा, हम लोग यहाँ पे एम इक्वल टू लिख सकते हैं
एम इक्वल टू लिख सकते हैं, एम इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी इक्वल टू क्या, ओ बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही हो जाएगा, रेडियस माइनस ओ सी इक्वल टू हम लोग ने अभी जस्ट निकाला था आर कॉस अल्फा बाई टू, आर कॉस अल्फा बाई टू। यानी कि एम की बात करें तो एम अगर सिंगल लेन रोड अगर, और जब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एस एस डी, उस केस में अगर हम बात करें तो सेटबैक डिस्टेंस इक्वल टू होता है आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू, आर में जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, रेडियस ऑफ कर्व है। अब बात करेंगे एंगल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एंगल कैलकुलेशन के लिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में जाएंगे और हमें पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि अगर आप लेंथ एंगल यहाँ आपको निकालना हो तो आर्क अपॉन रेडियस करना पड़ेगा। और आर्क आपका क्या है, पूरा का पूरा आर्क क्या है, पूरा का पूरा आर्क क्या है, एसएसडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं एसएसडी की, एसएसडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर इंटू अल्फा बाई टू इक्वल टू एसएसडी कर सकते हैं। तो अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा बाई टू इक्वल टू एसएसडी अपॉन टू आर। और ये अल्फा बाई टू पहले क्या आ रहा था, एसएसडी अपॉन टू आर इक्वल टू अल्फा बाई टू आ रहा था, और ये आ रहा था डिग्री में, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था डिग्री में, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए होगा, अल्फा बाई टू रेडियन में चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा मेजर कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके रेडियन में चाहिए होगा। और रेडियन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम यहाँ से अल्फा बाई टू की वैल्यू लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और ये अल्फा बाई टू की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में एम इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू में पुट करेंगे, और वहाँ से हम लोग अपना इक्वेशन, वहाँ से अपना साइड बैक डिस्टेंस निकाल लेंगे फॉर सिंगल लेन, एंड कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एस एस डी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर अ डबल लेन रोड। नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस का पूरा प्रोसेस सेम है, एनालिसिस का पूरा प्रोसेस सेम है, बस अभी डबल लेन की बात करें। डबल लेन का मतलब क्या हुआ, डबल लेन को अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं, डबल लेन का मतलब ये हो गया कुछ, डबल लेन का मतलब कुछ ये हो गया कि हमारे पास दो लेन रोड है, ये डबल लेन है, ये बीच में क्या है, रोड का सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है, ये बीच में रोड का क्या है, सेंटर लाइन है। तो लेन वन ये है, लेन टू ये है, तो ये डबल लेन रोड की बात कर रहा था। अब डबल लेन रोड में अब बात आती है कि सर व्हीकल कहाँ रहेगा, तो अगर व्हीकल अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर हमारे लेन नंबर 1 में व्हीकल है तब तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि आउटर साइड में व्हीकल है, उस बहुत पहले ही उसे इस साइड वाले व्हीकल का मूवमेंट पता चल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करें, क्रिटिकल केस कौन सा है कि अगर हमारा दोनों व्हीकल इनर लेन रोड पे है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तब उस केस में क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला है एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। आर माइनस, इससे पहले फॉर्मूला क्या था, इससे पहले फॉर्मूला था आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू। अब फॉर्मूला क्या हो गया, आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। अब इसमें आर माइनस डी क्यों किया गया, देखिए हम लोग बात कर रहे थे सिंगल लेन रोड में सेंटर लाइन से मेजरमेंट लेना था हम लोग को मेजरमेंट कहाँ से लेना था, सेंटर लाइन से मेजरमेंट लेना था। लेकिन अभी के केस में क्या है कि अभी हमारा जो सेंटर लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सेंटर लाइन हमारा कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और जबकि हमारा व्हीकल कहाँ है, हमने बोला अभी जस्ट कि हमारा व्हीकल इनर लेन में है, डबल लेन में भी इनर लेन में व्हीकल है। तो ये डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा डी जो है ना सेंटर लाइन से, ये एक्स्ट्रा डी आ जाता है, इसी एक्स्ट्रा डी का रिडक्शन हम करते हैं सो दैट कि हमारा सेटबैक डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जाए। इसीलिए हमने एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू कैलकुलेट करेंगे। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद एंगल निकालने का सेम प्रोसेस है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है, तो आर्क हमारा एसएसडी है, एसएसडी की बात करेंगे। और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो आर माइनस डी इंटू अल्फा बाई टू इक्वल टू एसएसडी बाई टू, तो अल्फा बाई टू इक्वल टू एसएसडी अपॉन टू इंटू आर माइनस डी इंटू 180 अपॉन पाई। यहाँ से भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब एक बात रखने वाली है कि ये डी क्या है, तो डी जो है वो विड्थ ऑफ रोड है, डी जो है वो विड्थ ऑफ रोड है। यहाँ पे जो ये डी वैल्यू आ रहा है, ये डी है, इट इज विड्थ ऑफ रोड, ये जो डी है ये विड्थ ऑफ रोड है। इसका क्या मतलब है, कौन सा विड्थ ऑफ रोड है, ये विड्थ ऑफ रोड है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। हम लोग ने जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग ने अभी लास्ट में ट्रांजिशन कर से पहले हम लोग ने एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात की थी कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, आप लोग उस लेक्चर को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो विड्थ ऑफ रोड है ये इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग के साथ विड्थ ऑफ रोड है। तो विड्थ ऑफ रोड को हम लोग ने टोटल रेडियस में से माइनस कर दिया था। क्यों माइनस किया था, मैंने अभी जस्ट बताया, इससे पहले हम लोग सेंटर लाइन से ले रहे थे, लेकिन अभी हमारा व्हीकल क्या है, हमारा व्हीकल अभी इनर लेन में आ गया, क्योंकि डबल लेन के कारण अब वो क्या हो गया, इनर लेन में आ गया। तो हम इस
सेंटर लाइन रीच तक करने तक में जो एक्स्ट्रा विथ आ रहा था हम उसको माइनस कर लेंगे और वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सभी वैल्यू सेम है। एम जो है वो सेटवेट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएसडी जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर रोड पे ऑन द वेरी बेसिस ऑफ डिजाइन स्पीड। अब हम बात करेंगे, हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे कि लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, उस केस में क्या होगा। तो ये कौन सा केस, क्या केस बन रहा है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये हमारा बेसिकली जो है ये कर्व है, इतना दूर कर्व है और बाकी का बाकी क्या है, ये स्ट्रेट रोड है। कर्व यहाँ से शुरू होता है, ये इस तरीके से कर्व शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कर्व कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ ऑफ कर्व यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन व्हीकल कहाँ है, व्हीकल यहाँ है, व्हीकल यहाँ है। तो एसएसडी तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसएसडी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस एसएसडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास में, अगर इस केस में आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े, इस केस में अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़े सेटबैक डिस्टेंस, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। एनालिसिस पहले देख लेते हैं। एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो पार्ट ब्रेक किया। पहला पार्ट जो है वो हम लोग ने यहाँ से यहाँ लेंगे और इस वैल्यू को हम लोगों ने नाम दिया M1, और दूसरा पार्ट जो है वो रोड के इनर लेन से यहाँ तक की वैल्यू लेंगे और उसको हम लोगों ने नेम दिया M2। अब हम बात करते हैं, ये है क्या, रोड का सेंटर है, कर्व का सेंटर है, रोड का सेंटर नहीं, कर्व का सेंटर है। कर्व का जो ये हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका सेंटर है। तो अब हम यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 को देखिएगा, M1 कौन सा डिस्टेंस है, M1 डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात करें, ये छोटा सा ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल, ये α/2 है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें और ये हमारा M1 है और ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस की बात की जा रही है, ये सॉरी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है S-LC/2। मतलब क्या हुआ, S-LC/2 कहाँ से आया, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है। ये वहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ ऑफ कर्व है, ये LC है, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व है। बचा हुआ पार्ट क्या बच रहा है, तो हम अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एसएसडी है, यानी कि S है, S-LC जो है ये बचा हुआ पार्ट बच रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये SC है। तो आधा आधा हम लोग ने 50-50 दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हो गया S-LC/2। तो अगर आपसे कोई पूछे M1 इक्वल टू, तो आप आराम से बता सकते हैं कि M1 इक्वल टू हो सकता है सर S-LC/2 साइन α/2, S-LC/2 साइन α/2, और वही हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है S इक्वल टू S-LC/2 साइन α/2। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट बात करते हैं M2 कैलकुलेट करने की। M2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो M2 भी बहुत ही ईजी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस देखिए फिर से, ये R है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R cos α/2 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व का रेडियस ही था पहले से ही। तो M2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, M2 तो यही डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R cos α/2। ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, R है, तो M2 इक्वल टू R माइनस R cos α/2। यानी कि अगर आपसे कोई इस केस में पूछे साइड सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो M इक्वल टू M1 प्लस M2, M2 इक्वल टू है R माइनस R cos α/2 और M1 इक्वल टू S-LC साइन α/2। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। उसके बाद बात आती है एंगल निकालने की। तो एंगल इक्वल टू फिर से होता है R का अपॉन रेडियस होता है। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रेडियस कर्व का रेडियस कितना है, अभी जहां से हम मेजर कर रहे हैं सेंट्रल लाइन ऑफ रोड से, वो रेडियस है R। एंगल कितना हमको निकालना, α/2। तो α/2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं LC अपॉन 2R इंटू 180/π। किस लिए, क्योंकि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, इसीलिए 180/π से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ये लास्ट टॉपिक था। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई हिली एरिया रीजन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हिली रीजन में हमें स्लोप देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में जनरली जो बात की जाती है वो स्लोप की बात की जाती है, स्लोप की बात की जाती है। और यहाँ पे जो कर्व होता है वो वर्टिकल स्लोप का कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप का कर्व नहीं होता है, वर्टिकल स्लोप का कर्व होता है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो डिपेंड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो हाईवे है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, तो सभी कुछ व्हीकल के स्पीड पर डिपेंड करेगा, उसकी एक्सेलरेशन या उसके डीएक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, व्हीकल के ऑपरेशन कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, और सेफ्टी कंफर्ट ऑफ पैसेंजर जो भी उस व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है या जो भी उस रोड पे ट्रैवल कर रहा है उसके कंफर्ट और सेफ्टी पे डिपेंड करेगा। तो व्हीकल अलाइनमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में। तो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट अगर आप जनरल मैथमेटिक्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है स्लोप को।
ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, तो यहाँ पे भी ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, वर्टिकल स्लोप को विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज ऑफ फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मतलब कि अभी तक मेरा रोड स्ट्रेट था, अब रोड थोड़ा वर्टिकल हो गया, तो ये जो इंक्लिनेशन हुआ है, ये इंक्लिनेशन जो है, ये इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ग्रेडियंट, यानी कि वर्टिकल राइज या फॉल। अब सेम केस में हमारा रोड फॉल भी तो हो सकता है ना, नीचे भी तो जा सकता है, रास्ता नीचे भी तो जा सकता है, जहाँ पे एलिवेशन लो लेवल पे है, मीन सी लेवल से डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पे तो नीचे भी घाटी की बात करें तो नीचे भी तो जा सकता है। तो आइदर राइज और फॉल अलोंग द हॉरिजॉन्टल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 in n, मतलब एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ में कितना वर्टिकल यूनिट है, या परसेंटेज में। तो कितने टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, तो जनरली जो ग्रेडियंट होते हैं वो ग्रेडियंट होते हैं 4 टाइप के, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट की बात हम लोग आने वाले लेक्चर्स में फर्दर डिटेल डिस्कशन के साथ करेंगे। ओके, तो फॉर टुडेज लेक्चर इतना ही। थैंक यू।